Hello and welcome to an all new episode of Ask PB. Today we will talk about maximizing returns. You know, they say while you work hard for your money, it's also important to know how you can make your money work for you. Today we'll talk about just that. To help you with some tips and tricks on maximizing returns, we have with us today Sameep Singh, Product Head Investments at PolicyBazaar.com. Welcome to the show, Sameep. Yeah. Sameep, what does maximizing returns mean for investors and why is it important? See, maximizing returns ideally should not be your aim. Your aim should be to have a goal in mind and start investing as early as possible, and that will automatically lead to return maximization if you invest in equity markets. So, for example, if you start at say 30 years of age and you have a goal in mind that I have to retire at 60. See, everybody retires at 60, and if you just start with 10,000 rupees a month and you get about 12% over 30 years. You end up with a corpus of around 3 crores and you have invested around 36 lakh rupees. Now, if you delay this by 5 years, so this is how you will maximize your investment. So you see, if you delay it by 5 years and you increase your investment amount to 12,000 rupees a month also, so आप net investment to 36 lakhs ही कर रहे होगे, but you have only 25 years for the money to grow. So आपका net return at the 12% rate of return only becomes 2 crores. So आपको net 1 crore रुपए का नुकसान हो जाएगा. So see, that is what I'm trying to say. If you want to maximize your returns, you have to start early and give it as much, as long as possible for the money to compound. So that is the most important bit. And obviously my suggestion would be for young audience to, invest in equity markets because they have been giving consistently good returns over the last 1 or 2 decades now, in fact. So it's the right choice to make and just start today and not delay it any further. What are the best types of investments for those looking to increase their returns? There are a lot of investment options in the market, specifically in India, a lot of people invest in real estate, right? And they do a lot of FDs. So see, real estate, I think the real estate markets have given good returns in the last, 1 or 2 decades, in fact, but the liquidity part is a concern. When you want an exit, right? Will you be able to exit at the right price? ये बहुत एक कंसर्न होता है रियल एस्टेट मार्केट्स के साथ कि जब आपको पैसे की जरूरत है क्या आपको सही अमाउंट मिलेगा. रिटर्न तो अच्छा आ जाएगा इफ यू हैव टाइम, बट एग्जिट की प्रॉब्लम होती है. द सेकेंड पॉइंट दैट आई वुड लाइक टू रेज इज दैट लोग फिक्स डिपॉजिट बहुत ज्यादा करते हैं इंडिया में. देखिए, फिक्स डिपॉजिट में तो रिटर्न की प्रॉब्लम है कि आपको 6, 6.5, 7% का ही रिटर्न मिलेगा विच इज ऑल्सो बी टैक्सेबल. So then again, that is also a problem because the net return that you get if you're in the 30% plus bracket is sub 5%. So that again, does not sound very lucrative. So I think the best way to move forward is to, invest in equities. You can do that through mutual funds, ULIPs. अगर आपको knowledge है तो आप stocks में भी directly invest करिए. Futures and options trading ये थोड़ा nuanced हो जाता है. I would not recommend young investors to try that unless until you have some financial knowledge around that. So equity में stick करिए, mutual fund ULIPs use करिए, SIP करिए उसके अंदर और अपने risk appetite के according large, mid, small caps choose करिए and make the best choice there. They have enough options to give you good returns. How do interest rates affect investment returns? See, interest rates have a direct impact on so I will slightly flip the question. So see, how does the market work? So see, if the fixed interest rates in the economy are high, अगर आपको fixed deposits या bonds पे बहुत ज़्यादा interest मिलेगा तो आप equity markets में participate ही नहीं करेंगे, right? आप सोचेंगे कि 8, 9, 10% का रिटर्न मुझे अगर डेट से ही मिल जाएगा तो आई वुड नॉट रियली पार्टिसिपेट इन इक्विटी. सो जनरली बट होता क्या है कि इन डेवलप्ड कंट्रीज, राइट, और डेवलपिंग कंट्रीज दैट आर मूविंग टुवर्ड्स बीइंग डेवलप्ड लाइक इंडिया, वहां पे जो इंटरेस्ट रेट साइकिल है वो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग यील्ड कर्व होता है जिसमें रिटर्न आपके ईयर ऑन ईयर कम ही हो रहे हैं. अगर आप 10 साल या 15 साल पहले देखेंगे तो आपको एफडी पे भी 12% के आसपास रिटर्न मिल जाते थे, राइट, और वो अब 6-7% रह गए हैं. तो ये एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है जो आगे भी कम होता जाएगा. तो इससे क्या होता है कि लोग इक्विटी की तरफ ऑटोमेटिकली मूव करते रहते हैं बिकॉज उनको फायदा दिखता है कि इक्विटी में ही पैसा लगाने से अच्छा रिटर्न आएगा और अच्छे पैसे बनेंगे. तो ये एक डेवलप्ड इकोनॉमीज का ट्रेंड है कि फिक्स्ड इनकम वाले इंस्ट्रूमेंट्स का जो रिटर्न है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा और इक्विटीज में ही अच्छे पैसे बनेंगे. तो लोगों को इक्विटीज में ही पैसा डालना पड़ेगा फ्यूचर में टू गेट गुड रिटर्न्स बिकॉज ये डायरेक्टली लिंक्ड होता है. क्योंकि अगर बैंक्स को एफडी पे वो कम पैसे देंगे तो लोन भी वो सस्ते दे पाएंगे, राइट. अगर वो एफडी पे 6-7 क्योंकि बैंक्स नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे ऑपरेट करते हैं तो अगर बैंक्स अपने फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स पे कम रिटर्न देंगे तो लोन भी वो कम रेट पे दे पाएंगे.
इसलिए, और डेवलप्ड इकोनॉमीज में कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमीज होती है, सब कोई कंज्यूम करता है, सबके पास घर गाड़ी होती है, तो इसके लिए फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड इनकम पे कम होते जाएंगे और आपको इक्विटी में ही पार्टिसिपेट करना पड़ेगा. दैट इज द फ्यूचर. यू शुड स्टार्ट टुडे and make the right choice. Can you suggest some simple strategies that beginners can start using to increase their investment returns? See, for beginners, जो मैं कहता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है, जो लोगों को you have to keep in your mind, is that आपको सबसे पहले एक गोल माइंड में रखना है. एंड देखिए, आपकी लाइफ में मल्टीपल गोल्स हो सकते हैं. ऐसा नहीं है कि एक ही गोल होना है इन्वेस्टमेंट का. आपका एक रिटायरमेंट का गोल है, आपको एक घर खरीदना है, उसका गोल है. फॉर एग्जाम्पल, आपका एक गोल है कि मुझे 5 करोड़ रुपए जमा करने हैं बाय द टाइम आई रिटायर. तो देखिए, एक ये गोल तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, सबको रिटायर करेगा. तो अब उस गोल के लिए आप पहले ही बैक कैलकुलेट करके इन्वेस्टमेंट करना चालू करिए. अगर आप 25 साल के हैं तो आपको करीबन 10,000 रुपए महीना इन्वेस्ट करना पड़ेगा. अगर 14% का रेट ऑफ रिटर्न आएगा तो आपके 5 करोड़ रुपए जमा हो जाएंगे बाय द टाइम यू टर्न 60. अगर आप 35 ईयर्स के हैं तो ये अमाउंट 16,000 रुपए हो जाएगी. और अगर आप 45 ईयर्स के हैं तो ये 60 तक अगर आपको 5 करोड़ रुपए जमा करने तो ऑलमोस्ट 55,000 रुपीज इन्वेस्ट करने पड़ेंगे. सो देखिए, आपको अपना गोल पता होना चाहिए. जल्दी स्टार्ट करेंगे तो आप अपना होराइजन बढ़ाकर ज्यादा टाइम तक इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको यह भी पता चल जाएगा कि कितना इन्वेस्टमेंट करना है. तो ये ऐसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैलकुलेटर्स होते हैं या SIP कैलकुलेटर बोलते हैं इनको. ये अवेलेबल होते हैं, पॉलिसी बाजार पे भी हैं, जिसमें आपका आके ये मैथ कर सकते हैं कि मेरा गोल ये है तो इसके लिए मुझे कितने पैसे जमा करने पड़ेंगे. और आपको अपनी लाइफ के 3-4 नॉन निगोशिएबल गोल्स आइडेंटिफाई कर लेने. एक जैसे सबका रिटायरमेंट होगा, यू विल हैव किड्स, सो उनकी एजुकेशन फाइनेंस करनी होगी. You will have to have, buy a house maybe 10 years, 15 years down the line. तो वो एक तीसरा गोल हो जाएगा. So see, these are 2-3 non-negotiable goals जो सबकी लाइफ में होंगे. So you have to plan for these, and these SIP power of compounding calculators help you do that. Now, what role does time play in maximizing returns? See, the value of letting it compound for a long period of time. ये मैंने पहले भी एग्जाम्पल से स्पेसिफाई किया कि अगर आप जल्दी स्टार्ट कर देंगे, जैसे मेरे लास्ट क्वेश्चन में ही मैंने बताया कि अगर आपका 5 करोड़ का एम है कि मुझे 60 साल में चाहिए, अगर आप 25 में स्टार्ट कर देते हैं तो आपको 9,500 रुपए ही इन्वेस्ट करने पड़ेंगे एट 14% रेट ऑफ रिटर्न. अगर आप 10 साल और डिले कर देंगे, 35 में करेंगे तो वो 15,000 हो जाएगा. अगर आप 45 में स्टार्ट करेंगे उस गोल के लिए तो आपको 55,000 रुपीज ऑलमोस्ट इन्वेस्ट करने पड़ेंगे. तो देखिए, ये टाइम ही ना, जैसे जैसे आपका टाइम कम होता जा रहा है, आप देखिए रिटायर गोल तो आपको उसी दिन चाहिए, मतलब पैसे चाहिए होंगे जिस दिन आप रिटायर करेंगे. बट अगर आप डिले करते जाएंगे अपनी इन्वेस्टमेंट को तो आपके पैसे को ग्रो करने का जो होराइजन है वो कम होता जाएगा. देखिए, रेट ऑफ रिटर्न सडनली तो ऐसा नहीं है कि बहुत बढ़ जाएगा या आपको बहुत अनयूजुअली हाई रिस्क लेने पड़ेंगे अगर आप डिले कर देंगे अपनी इन्वेस्टमेंट की. आपको 18-20% रेट ऑफ रिटर्न के लिए अगर आप टारगेट करेंगे कि मेरे को कम पैसे में ज्यादा कॉर्पस बन जाए तो उसके लिए रिस्क आपका बढ़ता जाएगा. उसमें डाउन टर्न आने में आपके पैसे को जो आप एम कर रहे हैं कॉर्पस वो भी शायद ना मिल पाए, क्योंकि अगर डाउन टर्न आ गया, बिकॉज सी रिस्की इन्वेस्टमेंट्स अगेन हैव अ प्रोबेबिलिटी ऑफ गिविंग वेरी गुड रिटर्न्स, बट द डाउन टर्न्स गिव वेरी वेरी पुअर रिटर्न्स आल्सो, सो दे आर वेरी वॉलेटाइल. तो इसलिए आप जल्दी स्टार्ट करिए. सिंपल, लार्ज, प्रेडोमिनेंटली लार्ज कैप्स, थोड़ा मिड कैप एलोकेशन रखिए अपने पोर्टफोलियो में और इन्वेस्टमेंट करिए. एंड जितना ज्यादा टाइम देंगे अपने पैसे को ग्रो करने में उतना ज्यादा आपका रिटर्न आएगा और मैच्योरिटी वैल्यू बनेगी. दैट इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मंत्र ऑफ इन्वेस्टमेंट, दैट start early, give it enough time horizon, and you will always get good returns. For the benefit of our viewers, can you explain diversification and why it is important? Diversification is very very important in your portfolio. आपको अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना है. सारा 100% पैसा इक्विटी में नहीं डालना है, FD में भी डालना है. 10% ऑफ इनकम FD में डालिए, क्योंकि वो पैसा रेडिली लिक्विफाइबल होगा. कल आपको पैसे की जरूरत है, आप जाइए बैंक, पैसा विड्रॉ करिए, यूज करिए, तो वो 10% पैसा उसमें होना चाहिए. आपको ऑल्टरनेटिव इंस्ट्रूमेंट्स भी कंसिडर करने चाहिए. डेट या गारंटीड रिटर्न प्लान्स, ये भी होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में. क्यों? क्योंकि देखिए, सबको एक फिक्स्ड इनकम की जरूरत है फ्यूचर में, राइट? सब लोग रिटायर होंगे तो उनकी इनकम खत्म हो जाएगी. तो उसमें कोई वहां एक अगर आपके पास फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट का सोर्स है जिससे आपको गारंटीड इनकम आए, अगर आप फॉर एग्जांपल साल का, थोड़ा बड़ा एग्जांपल लेते हैं क्योंकि इनकम तो लोगों को ज्यादा ही रिप्लेस करनी पड़ेगी. अगर आप 5 लाख रुपए साल का इन्वेस्ट करें गारंटीड रिटर्न प्लान्स में 10 साल तक, और आप 12वें साल से इनकम लेंगे, तो आपको करीब 6-6.5 लाख रुपए इनकम आ सकती है अगले 40 साल तक. तो देखिए, अगर आप 35 पे स्टार्ट करेंगे और आप 45 तक पे करें 5-5 लाख रुपए हर साल, तो 47th ईयर से आपको ऑलमोस्ट 6-6.5 लाख रुपए इनकम आएगी अगले
30 से 40 साल, डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ प्लान यू टेक। जनरली 30 ईयर होराइजन वाले प्लान ज्यादा पॉपुलर हैं और उसके बाद आपको एक लमसम पैसा वापस हो जाता है। तो देखिए ये काफी वो है कि आप रिटायर कर जाएंगे, उसके बाद आपको एक इनकम आएगी जो आपकी एक पेंशन की तरह होगी, क्योंकि सारे लोग तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते नहीं है कि उनको सरकार पेंशन देगी। तो दैट इज वाई यू हैव टू प्लान फॉर योर रिटायरमेंट, सो दैट इज अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन। आपको कुछ पैसा रियल एस्टेट में लगाना चाहिए। देखिए रियल एस्टेट में भी अच्छा अप्रिसिएशन आता है। जब आप यंग हैं तो इक्विटी में लगाइए। क्यों? क्योंकि देखिए आप उतना पैसा स्पेयर नहीं कर सकते कि आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर पाएंगे, राइट? रियल एस्टेट में तो लमसम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। कहीं आप टियर 2 टियर 3 टाउन्स में भी करेंगे तो एटलीस्ट 50 लाख रुपए लगेंगे। तो वो पैसे आपको प्लान करने पड़ेंगे। तो आप एट यंग एज इक्विटी में रखिए, फिर जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, आपकी इन्वेस्टमेंट इनकम बढ़ती है, वैसे वैसे आप उसको डाइवर्सिफाई करते जाइए अलग अलग इन्वेस्टमेंट क्लासेस में। ये 2-3 जो मैंने बताई, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज है जो आपको जरूर सोचनी चाहिए। Now, how important is it to regularly review and adjust your investment portfolio? Regularly reviewing your portfolio and checking how much returns you're getting is extremely important. See why? Because आपने फॉर एग्जाम्पल जैसे पहले लार्ज कैप में पैसा लगा लिया या किसी कंपनी के लार्ज कैप में पैसा लगाया, फिर आप देख रहे हैं कि ये रिटर्न जो है मेरा उतना अच्छा आ नहीं रहा है ना? तो आपको ऑब्वियसली आपका पोर्टफोलियो रीबैलेंस करना पड़ेगा, राइट? या अगर मार्केट्स में मिड कैप स्टॉक्स बहुत अच्छा कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको स्विच करना चाहिए कि मैं लार्ज कैप से मिड कैप में स्विच कर जाऊं। या अगर मार्केट्स गिर रहे हैं तो आपको अपना पोर्टफोलियो डेट में मूव कर देना चाहिए, राइट? क्योंकि डेट में सिक्योरिटी होगी, है ना? वो बॉन्ड्स में पैसा लगाएंगे। तो ऐसे आपको रीबैलेंस करते रहना चाहिए। और अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई फंड है या कोई स्टॉक है जो अंडर परफॉर्म कर रहा है तो उसको रिमूव करके ऑब्वियसली बेटर परफॉर्मिंग में कर देना चाहिए मूव। अगर आप ये सब खुद नहीं कर पा रहे हैं तो, और आपको लग रहा है कि मुझे इनफ नॉलेज नहीं है इसकी कि मैं ये खुद रीबैलेंसिंग खुद कर पाऊं ये सारी, तो देखिए कंपनीज के पास ऐसी स्ट्रैटेजीज भी होती है जिसमें कंपनी ऑटोमेटिकली आपका पैसा इक्विटी टू डेट मूव करती जाती है जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है। वो एज बेस्ड, देखिए जैसे आप यंग है तो आपका ज्यादा पैसा इक्विटी में होना चाहिए। जैसे जैसे आप ओल्ड होते जा रहे हैं तो आपको ऑब्वियसली इतना इक्विटी एक्सपोजर नहीं चाहिए, क्योंकि इक्विटीज कैन बी वॉलेटाइल ऑल्सो। तो वो आपका पैसा ऑटोमेटिकली डेट में मूव करते जाते हैं। और ऐसे ऐसे नए नए फंड्स भी आ रहे हैं, जैसे कि मैं 1-2 एग्जांपल्स बता दूंगा आपको। जैसे निफ्टी 500 मोमेंटम 50 फंड है, वो बेसिकली टॉप 50 स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है इकोनॉमी में एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो अलग अलग इनकी स्ट्रैटेजीज है, इनकी बेस स्ट्रैटेजीज है टू आइडेंटिफाई द बेस्ट स्टॉक्स। तो इसमें आप इन फंड्स में पैसा लगाइए और उस क्वार्टर या उस साल में जो बेस्ट 50 स्टॉक्स होंगे इंडियन स्टॉक मार्केट में, उसमें जो बेस्ट रिटर्निंग स्टॉक्स होंगे उसमें आपका पैसा लगेगा। तो ऐसे अलग अलग स्ट्रैटेजीज है जिसको आप चूज कर सकते हैं। मैंने थोड़ा ओवर सिंप्लीफाइड तरीके से निफ्टी 500 मोमेंटम 50 बताया, बट आप पॉलिसी बाजार आ सकते हैं। हमारे पास ऐसे कुछ फंड्स हैं, तो आप हमारे एडवाइजर से बात करके यू कैन मेक द राइट इन्वेस्टमेंट चॉइस देयर। Now, one mistake that investors tend to do is that they focus solely on maximizing returns. Why should one not do that? See, as I mentioned, your aim should not be to maximize your return. आपको मतलब मैक्सिमाइज रिटर्न आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा अगर आप सही टाइम पे इन्वेस्ट करना चालू कर देंगे। अगर आप 50 साल की उम्र में बोलेंगे कि अब मेरे पास 10 साल है और अब मुझे 10 करोड़ रुपए जमा करने हैं, तो नाउ इट इज टू लेट टू maximize your return or maximize your corpus, because at 50 you will have to invest a very large amount of money every month, and and unless you are ultra HNI आप वो अमाउंट नहीं स्पेयर कर पाएंगे। तो इसलिए फॉर द यंगर ऑडियंस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको अपने रिटर्न्स या आपके मैच्योरिटी कॉर्पस को मैक्सिमाइज करना है तो उसको ये है कि उसको टाइम देना पड़ेगा। अगर आप सोचे कि देयर आर वेरी फ्यूचर्स ऑप्शंस ट्रेडिंग कर लेंगे, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर लेंगे, देखिए ये सब बहुत ही रिस्की एंडेवर्स होते हैं, एंड नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर के लिए ये मैं तो एटलीस्ट नहीं प्रिस्क्राइब करूंगा। तो आपको सही टाइम पे इन्वेस्ट करना है, और अगर आप उसको आराम से 10 से 20 साल देंगे तो पैसे अपने आप बन जाएंगे, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, इक्विटी मार्केट्स अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। आप देखेंगे कि किसी भी इंडेक्स में आप पैसा लगाएं या किसी भी फंड में पैसा लगाएं, काफी 10 से 12% का रिटर्न तो लार्ज कैप्स तो दे ही रही हैं। तो देखिए आप अगर सही टाइम पे स्टार्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली पैसे बन जाएंगे। डोंट टेक अनड्यू रिस्क्स एंड स्टार्ट एट द राइट टाइम, दैट विल आल्सो इंश्योर दैट आपका मैच्योरिटी कॉर्पस और आपका रिटर्न ऑटोमेटिकली मैक्सिमाइज हो जाए। Now it's time for our audience questions. Our first question is from Meera Shah from Mumbai. She says, I'm a conservative investor and have primarily invested in fixed deposits and government bonds.
I want to start exploring equity to increase my returns, but I'm afraid of the risks. How can I ease into this transition without overwhelming myself? Hi Meera, first of all, welcome to the show. See, the most important thing that you should keep in mind is that equity allocation in your portfolio is extremely important. नहीं तो आप इन्फ्लेशन देखिए, इन्फ्लेशन ही 6 से 7% है. अगर आपको पोस्ट टैक्स रिटर्न एफडी में 5-4.5% मिलेगा अगर आप 30% प्लस ब्रैकेट में हैं, या अगर आप लोअर ब्रैकेट में भी हैं, तो भी आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न नहीं मिल रहा है. तो इक्विटी पार्टिसिपेशन तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है. सेकेंडली, आपको अगर ये स्ट्रेस है कि अगर मेरा प्रिंसिपल जो इन्वेस्ट हुआ है वो भी क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल होता है तो उसको कुछ वो रिटर्न, मेरा प्रिंसिपल कम नहीं होना चाहिए, तो पॉलिसी बाजार पे आप आ सकते हैं. हमारे पास एक कैपिटल गारंटी प्लान्स करके एक कैटेगरी है. इसमें बहुत सिंपल होता है कि आपने अगर 10,000 रुपए लगाए तो ये अपफ्रंट आपको गारंटी कर देते हैं कि आपने जो 10,000 रुपए फॉर एग्जांपल 10 साल तक लगाए तो 12 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करेंगे. ये 12 लाख रुपए आपको मैच्योरिटी पे वापस मिलेंगे ही मिलेंगे. बेसिकली आपका कुछ पैसा डेट या गारंटीड रिटर्न प्लान्स में लगा देते हैं, जिससे वो गारंटी हो जाता है कि आपको ये 12 लाख रुपए वापस होगा ही होगा, और आपका बाकी पैसा इक्विटी में लगता है, जिससे आपको मार्केट बीटिंग रिटर्न्स मिलेंगे और अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे. तो ये आपको एक सिक्योरिटी प्लस गुड रिटर्न्स का अच्छा अपॉर्चुनिटी है. इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, एंड आई एम प्रीटी श्योर यू विल लाइक द कॉन्सेप्ट. Our next question is from Amit Verma from Bangalore. I've recently started investing in mutual funds. I keep hearing about SIPs and lump sum investments. What approach would be better for someone looking to maximize their returns in the long term? Basically, you obviously you can either do SIPs. SIPs are nothing but systematically investing every month. And lump sum आप एक one time investment करते हैं. देखिए, lump sum investment करने की प्रॉब्लम ये होती है कि you are timing the market, right? अब आपने एकदम हाई पे एंटर करा तो ये हो सकता है कि आपको अगले 6 महीने साल भर तक बहुत ज्यादा अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा. क्यों? क्योंकि अगर आपने एकदम टॉप ऑफ द मार्केट पे पीक पे एंटर करा है, जो कि काफी सारे रिटेल इन्वेस्टर्स करते हैं, क्योंकि जब मार्केट बढ़ रही होती है तभी वो एंटर करते हैं. तो होता क्या है कि अगर वो एकदम पीक पे एंटर करते हैं तो ऑब्वियसली मार्केट्स माइट टैंक या रिमेन स्टेबल फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स. तो उनको रिटर्न नहीं दिखेगा और उनको लगेगा कि यार ये तो पैसे बढ़ ही नहीं रहे हैं, राइट? तो इसका ऑपर्च्यून ऑल्टरनेटिव है कि आप SIP करिए. उसमें क्या होगा कि आप हर महीने इन्वेस्ट करेंगे, तो कभी आपका मार्केट अपवर्ड, आपका पैसा अपवर्ड ट्रेंड ऑफ द मार्केट में इन्वेस्ट होगा, कभी डाउनवर्ड ट्रेंड पे इन्वेस्ट होगा. तो आपको एवरेज ओवर 1 ईयर डिसेंट रिटर्न मिलना चाहिए. प्लस आपके पॉकेट पे बर्डन भी नहीं पड़ेगा. क्यों? क्योंकि लमसम इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप पैसे जमा करके रखेंगे. सी, इफ यू हैव गॉट कैश फ्रॉम समवेयर, then also I would not suggest कि आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट मत करिए, एंड उसको सिस्टम डेट में पार्क कर दीजिए, एंड डेट से धीरे धीरे हर महीने ट्रांसफर करिए. और ये ऑटोमेटिकली सेटअप हो सकता है कि मैंने एक डेट में इन्वेस्टमेंट कर दी और वो ट्रांसफर हो जाएगी इनटू यूलिप और म्यूचुअल फंड के इक्विटी पोर्टफोलियो में. ये सब ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, तो आप ये भी चूज कर सकते हैं. इट्स अ गुड ऑप्शन टू डू. बट मेरा सजेशन हमेशा यही होगा कि मंथली ही इन्वेस्टमेंट करना फायदेमंद है, बिकॉज यू डोंट हैव टू टाइम द मार्केट्स देयर. Our next question is from Pooja from Pune. She says, I've read a lot about how inflation can erode returns. I'm currently invested in a mix of real estate and gold. Should I diversify further to combat inflation effectively? And if so, what should I consider? See, real estate of late in India has been growing like tremendously, very, very good CAGR. And, if you have entered in the market at the right point of time, आपको काफ़ी अच्छा, आपका मतलब real estate portfolio काफ़ी appreciate कर गया होगा. वो आपको रखना चाहिए. देखिए, रियल एस्टेट से अगर आप रेंटल यील्ड के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप कंसिडर कर सकते हैं. अगर आप उसको एट सम पॉइंट लिक्विडेट करना चाहते हैं तो देखिए, अभी अगर आपके पास टाइम है तो आप लिक्विडेट कर सकते हैं. बिकॉज सी, जब आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी तब आप सोचेंगे कि अब मैं इमीडिएटली मुझे 1 महीने में इसको लिक्विडेट करना है, तो वो प्रॉब्लमैटिक हो जाता है. तब आपको डिस्ट्रेस सेल करनी पड़ेगी, क्योंकि शायद आपको राइट प्राइस ना मिले, क्योंकि रियल एस्टेट सेल में थोड़ा टाइम लगता है. तो अगर आपको लग रहा है कि मुझे 6 महीने या साल भर बाद पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, या you want to move out of some of the assets, you should start doing that now, and do not wait till the last moment to exit the real estate investment. Obviously, but see, that is what I'm trying to say कि real estate में liquidity का थोड़ा concern होता है. Gold ने भी अभी काफी अच्छी returns दी हैं. मैं ये नहीं कह रहा कि दोनों अच्छे options है, but in a developing country like India, equity में तो 100% investment करनी चाहिए. क्यों? क्योंकि ये easily liquefiable है. कल आपको पैसे की जरूरत है, आपने अपने यूलिप फंड से या म्यूचुअल फंड से पार्शियल विड्रॉल रिक्वेस्ट करी और कुछ पैसे आपके अकाउंट में आ गए.
तो ये काफ़ी अच्छी सुविधा है कि भाई मुझे पैसे की ज़रूरत है और मैंने पार्शियल विड्रॉल रिक्वेस्ट करा और मेरे अकाउंट में पैसे आ गए. सो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, राइट. एंड पैसा बढ़ता भी जाएगा और छोटे छोटे अमाउंट से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. आप 1000 रुपये से प्लान चालू कर सकते हैं. तो और कहीं कहीं तो 500 रुपये से भी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होती है. तो देखिए, वो मैं ये नहीं कह रहा कि आप इतने लो अमाउंट से स्टार्ट करिए, बट आप इसको जरूर चालू करिए. एंड टू नॉट पुट 100% ऑफ योर पोर्टफोलियो इन रियल एस्टेट एंड गोल्ड, बिकॉज इक्विटीज हैव बीन गिविंग वेरी गुड रिटर्न्स. एज आई मेंशन्ड अर्लियर, इट शुड बी डाइवर्सिफाइड. और फॉर somebody less than 45, I would say more than 50% should be in equities. Thank you for all of those insights, Sameep. I am sure our viewers are very, very thankful. And viewers, thank you for staying tuned. If you still have any questions, any queries whatsoever, please feel free to reach out to us through our official channels. Or you could drop some comments in the section below and we'll take them up in the next session. Stay safe and see you again next time.